New CEO was इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यस बैंक संकट को लेकर प्रेस से बातचीत कर रही हैं। 1 crore of rupees fine was levied on this bank as early as March 2019. 2017, the intense scrutiny starts. 18, you clearly identify and don't allow the leadership to continue. 19, 1 crore of rupees was even levied as fine, and that is early 19, sometime March 2019. And then SEBI also starts the investigation from September 2019. And that allegation at that time, I don't know if there are many more which are getting added, but at that time it was on insider trading related matters. Then in May again, there was another set of fine imposed by Reserve Bank because of non-compliance related matters. And a former deputy governor of RBI was appointed onto the board of Yes Bank as a director. In June 19, again another set of fines were levied, saying, no, it is not happening, you don't seem to be having a good... Again, there was another set of fine imposed by Reserve Bank because of non-compliance related matters. And a former deputy governor of RBI was appointed onto the board of Yes Bank as a director. In June 19, again another set of fines were levied, saying, no, it is not happening, you don't seem to be having a good compliance culture, here we go, another fine. A chief financial officer was also newly appointed. And it was only in September 19 that you had a complete giving away of the shares. I mean, stake was completely sold of the earlier promoter. All this while, there was also this promise being given saying we are getting more money from here, we are getting new equity here, somebody coming from Hong Kong is giving us money, and very genuinely attempts were made to get new equity infusion done into the bank. Genuinely a lot of attempts were made, but nothing materialized. Period after period, the RBI was also informing us that they've given them more time so that they can get fresh equity, fresh infusion of cash, so that the bank's health can be restored. And every time you had to give them the space and margin, because after all, if there is a genuine attempt being done, let them get it. But it didn't happen at all. As a result, it went on like that. And once in November 19, it was very clear that no longer there was hope for them to get any more money. And coincidentally, the chairman of the audit committee also resigned early January 2020. Things came to a serious pass. And that is when I think we intensely engaged, as we were continuing the engagement, a lot of other ideas with which we were talking with the RBI was talking with the management. I've asked the RBI now actually to go into assessing what actually has caused these difficulties for the Yes Bank. I've asked him to find out and assess as to where the problem, the causative problem lies. And also clearly identify the role played by various individuals in the problem, in creating the problem and not so comprehensively addressing the problem. And I've also asked the RBI to tell me about adequacy of the extant regulatory norms, also the supervisory norms, and if found in यस बैंक को लेकर मौजूदा संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और किस तरीके से यस बैंक का लोन बैड लोन में तब्दील होता गया और इस पर आरबीआई की किस तरीके से नजर है, सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, इसके बारे में जानकारी देते हुए चलिए आगे रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का। आप अपनी गाढ़ी कमाई बैंक में जमा करते हैं ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप उसे निकाल सके, उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन जब यह भरोसा टूटता है तो मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। पीएमसी बैंक के बाद अब ऐसा ही भरोसे का संकट यस बैंक के साथ पैदा हो गया है। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यस बैंक में आखिर क्यों पैदा हुआ संकट और चुनौतियां क्या है, इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, ये खास बुलेटिन।
यस बैंक के खाता धारकों के लिए बुरी खबर आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपए निकासी की सीमा तय कर दी है 1 महीने के लिए। जानकारी के मुताबिक आरबीआई का ये आदेश अगले 1 महीने के लिए है। अगर आसान भाषा में हम आपको इसे समझाएं तो यस बैंक के ग्राहक 1 महीने तक सिर्फ 50,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल सकेंगे। आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए की है। यस बैंक पर वित्त मंत्रालय ने गुरुवार 5 मार्च 2020 की शाम 6 बजे से 3 अप्रैल तक बैंक के डिपॉजिटर्स पर पाबंदी लगाई है। यानी अगले 3 अप्रैल तक खाता धारक सिर्फ 50,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल सकते हैं। ये पाबंदी रिजर्व बैंक के आदेश पर लगाई गई है। रिजर्व बैंक ने 1 महीने के लिए ये लिमिट तय किया है और कहा है कि यस बैंक के खातों से सिर्फ 50,000 रुपए तक की रकम निकाली जा सकेगी। ये सेविंग, डिपॉजिट और करंट अकाउंट सभी को मिलाकर है। इसका मतलब ये है कि आपके यस बैंक में कितने भी अकाउंट हो, आप 1 महीने की इस सीमा में सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। इससे ज्यादा पैसे आप नहीं निकाल सकते। यस बैंक खाता धारकों को होली से पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लगा ली हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब एटीएम में कैश खत्म होने लगा है। कुछ जगहों पर अफरा तफरी भी देखने को मिली है। यस बैंक के ग्राहक सुबह सुबह एटीएम पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। कई जगहों पर पैसे निकालने की हड़बड़ी में हालात बेकाबू दिखा, जिसके बाद बैंक को एटीएम के बाहर पुलिस को तैनात करना पड़ा। यस बैंक में लगी पाबंदियों का असर शेयर बाजार में भी दिखा। शेयर बाजार में 1400 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही यस बैंक के शेयर में भी बेतहाशा गिरावट हुई। यस बैंक के शेयर में लगभग 74% की गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले आरबीआई ने गुरुवार को यस बैंक के बोर्ड का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। सुबह करीब 11:30 बजे तक बैंक का शेयर गिरकर 10 रुपए प्रति शेयर पर आ गया था। पिछली बार दिवाली के दौरान महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक के हालात खराब हो गए थे और इस बार होली के दौरान यस बैंक अपने बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यहां तक कि दिन के कारोबार के दौरान यस बैंक के शेयर 50% तक गिर गए। हालत इतनी खराब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक से पैसे निकालने की सीमा तक तय कर दी। यानी बैंक में भले ही आपके लाखों रुपए पड़े हों, लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक आप पैसे नहीं निकाल सकते। ऐसे में ग्राहकों के बीच एक डर का माहौल बना है। अफरा तफरी देखी जा रही है। बहुत से लोग इस डर से एटीएम भाग रहे हैं कि उनके पैसे न डूब जाएं, तो बहुत से लोगों को किसी बड़ी जरूरत के चलते एटीएम या फिर बैंक का रुख करना पड़ रहा है। आरबीआई के निर्देशों के बाद यस बैंक ने रवनीत गिल को नया एमडी और सीईओ बनाने का ऐलान किया है। रवनीत गिल मौजूदा सीईओ राणा कपूर की जगह 1 मार्च से कार्यभार संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि रवनीत गिल फिलहाल डोइश बैंक के सीईओ हैं और उनके पास 32 साल का बैंकिंग अनुभव है। रवनीत के पास कैपिटल मार्केट, ट्रेजरी, फाइनेंस, फॉरेन एक्सचेंज और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का भी अच्छा खासा अनुभव है। यस बैंक के कस्टमर्स के बीच मचे हाहाकार के बीच एसबीआई के चेयरमैन रजनीश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात तक उन्होंने की है। मुलाकात के बाद एसबीआई चेयरमैन रजनीश ने कहा कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं। यस बैंक की प्रॉब्लम सिर्फ एक बैंक तक है, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर की समस्या नहीं। यस बैंक की हालत क्यों हुई? दरअसल बीते कुछ सालों में यस बैंक को एक के बाद एक झटके लगे हैं। जहां बैंक पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो वहीं शेयर भी टूट रहा है। 15 महीने के भीतर बैंक के निवेशकों को 90% से ज्यादा का नुकसान हो गया। यस बैंक पर संकट बढ़ने की एक वजह यह भी बताई जा रही है। खास बात यह है कि यस बैंक पर कुल 24,000 करोड़ डॉलर की देनदारी है। यानी इतने पैसे बैंक में फंसे हुए हैं। बैंक के पास करीब 2.85 लाख करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। अब अगर यस बैंक को घाटे से उबरना है तो उसको कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए 2 अरब डॉलर चुकाने होंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ने कुछ विशेष जरूरत वाले मामलों में छूट भी दी है। अर्जेंट केस में भी 5 लाख से ज्यादा की रकम बैंक से नहीं निकाली जा सकती है। जैसे अगर किसी खाता धारक या फिर उस पर निर्भर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए होंगे तो वो 5 लाख तक निकाल सकता है। साथ ही एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत हो तो 5 लाख तक निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा किसी के घर में शादी है तो भी वो 5 लाख रुपए तक निकाल सकता है। अगर किसी के यहाँ कोई आपात जरूरत है तो ऐसे मामलों में आरबीआई ने छूट दी है ताकि लोगों को दिक्कत आए। देश के चौथे सबसे बड़े निजी बैंक यानी यस बैंक की मौजूदगी पूरे देश में है। देश भर में यस बैंक के कुल 1120 ब्रांचेज हैं। साथ ही कुल 1450 एटीएम हैं जो देश के ज्यादातर बड़े शहरों में लगे हैं। यस बैंक की कुल पूंजी 3,80,000 करोड़ है, लेकिन बैंक के ऊपर 2,41,500 करोड़ का कर्ज है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे फेल हुआ यस बैंक। उसकी वजह हम आपको बताते हैं। यस बैंक फंड जुटाने में नाकाम रहा। दूसरा, कर्ज में डूबे बैंक ने अपनी वास्तविक स्थिति छिपाई, यानी बैंक के ऊपर कुल कितना कर्ज था, बैंक ने आरबीआई से उसकी जानकारी छिपाई। यही नहीं, यस बैंक ने आरबीआई को झूठा आश्वासन दिया कि बैंक में सब कुछ ठीक है। इसके अलावा बीते कुछ सालों में देखा गया कि निवेशकों का बैंक से मोहभंग हो रहा था, यानी इन्वेस्टमेंट काफी कम होता जा रहा था। एक वजह यह भी है कि बैंक का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था, जबकि मुनाफा बेहद मामूली था। इसके अलावा ग्राहकों की लगातार निकासी भी इसकी वजह बनी। रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक पर सख्त पाबंदी लगाए जाने के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि हमने 30 दिनों के लिए निकासी की ये लिमिट लगाई है। जल्द ही आरबीआई यस बैंक को संकट से निकालने के लिए तेजी से कार्रवाई करेगा। Always a question. It will be done very swiftly. It will be done very fast. 30 days, which we have given, is the outer limit, and you will see, you will see very swift action from the Reserve Bank of India to put in place, a scheme to revive the Yes Bank. वहीं यस बैंक मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि मोदी और उनके विचारों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, यस बैंक नो, मोदी और उनके विचारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। यस बैंक के संकट पर राहुल गांधी का ये ट्वीट और उस ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। पी चिदम्बरम ने कहा कि पहले पीएमसी बैंक और अब यस बैंक, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। It shows complete regulatory failure, and I wonder if this is the end or there will be more in the line. Yet the government keeps absolutely silent. As far as the PMC Bank is concerned, the depositors are agitating every day on the streets of Mumbai before the central government offices and the RBI. The government doesn't respond. Now let's see what the depositors and other stakeholders and Yes Bank do. I think they are as worried as the depositors of PMC Bank. And let's see what unfolds now. यस बैंक के बहाने विपक्ष के निशाने पर आई मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, विपक्ष को इस पर बोलने का अधिकार नहीं। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि खाता धारकों का पैसा सेफ है। एटीएम में कैश की दिक्कतों पर बातचीत जारी। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए रिजर्व बैंक पूरे उनके ताकत लगा रहे हैं। 50,000 रुपए बाईपास कर चुके हैं उनके बोर्ड को। एक सीएफओ, फॉर्मर सीएफओ ऑफ एसबीआई को अपॉइंट कर चुके हैं। वो रेजोल्यूशन निकालने के लिए पूरे उनके टीम के साथ बैठे हैं। और रिजर्व बैंक से ये भी मुझे आश्वासन मिला है, जल्द से जल्द इसका रेजोल्यूशन कर ही ले। और कोई डिपॉजिटर का कुछ रिस्क नहीं है, घबराने के लिए कोई कारण नहीं है। मौजूदा स्थिति तो यही है कि यस बैंक बड़े संकट में फंसा दिख रहा है और इसको बचाने की कवायद भी तेज हो गई है। सरकारी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाएंगे। सूत्रों के मुताबिक यस बैंक को बचाने के लिए सरकार ने एसबीआई और एलआईसी का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने संकटग्रस्त यस बैंक में निवेश के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो आर्थिक संकट में फंसे यस बैंक में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की हिस्सेदारी होगी। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की है। निर्मला सीतारमण से मिलने के बाद रजनीश कुमार ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिस्टम बना रहे हैं। अगर बात करें यस बैंक की तो ये ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2004 में राणा कपूर ने अपने रिश्तेदार अशोक कपूर के साथ मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। 26/11 के मुंबई हमले में अशोक कपूर की मौत हो गई। इसके बाद अशोक कपूर की पत्नी मधु कपूर और राणा कपूर के बीच बैंक के मालिकाना हक को लेकर लड़ाई शुरू हो गई।
यस बैंक में कैश पाबंदी के बाद अब ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह ग्राहक परेशान हैं, लोग एटीएम जा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। देश के एक बहुत बड़ा बैंक यस बैंक पे यहाँ पे पाबंदियां लगाई गई है आरबीआई की तरफ से, और उन पाबंदियों में से एक ये है कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स है यहाँ से सिर्फ 50,000 रुपए ही यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे एक अकाउंट होल्डर हमारे साथ है। सर, आप बताएं, क्या आप अपने 50,000 रुपए निकाल पाए? हाँ, बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा एक दिक्कत हुआ है यस बैंक के साथ, तो इससे आपको थोड़ा डर लग रहा है, पैनिक क्रिएट हुआ है? नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। अभी तो रिजर्व बैंक ने इसको अपने कंट्रोल में किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बाकी बैंक वालों ने भी कहा है कि आपका पैसा सेफ है। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप भी यहाँ पे अकाउंट होल्डर हैं, ये बता दीजिए, यहाँ पे जो इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी हैं यहाँ के इंटरनेट बैंकिंग का, और उसके अलावा जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है वो सब भी शायद बंद कर दिया, तो इससे दिक्कतें फेस होंगी लोग? बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है। कल रात से ना कोई मतलब आपको पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, कुछ स्वाप नहीं कर पा रहे, कुछ भी रिलेशन एटीएम से कोई पैसा नहीं निकल रहा है, कि नेट बैंकिंग यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो अब पूरा पैसा ब्लॉक है। सिंगल पैन ही नहीं निकाला अभी तक बाहर से। अब बाउंडेशन 50,000 निकाल सकते हैं सिर्फ। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं, और शायद चेक बाउंस वगैरह तक होने की बातें होने लगी हैं, तो लोगों में डर बैठ गया है। पर कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि शायद आरबीआई की इससे ही उम्मीदें हैं, और आरबीआई ही शायद इस पूरे मामले को सुधार सकता है। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। नहीं निकाला अभी तक बाहर से। अब बाउंडेशन 50,000 निकाल सकते हैं सिर्फ। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ दिक्कतें फेस करने को मिल रही हैं, और शायद चेक बाउंस वगैरह तक होने की बातें होने लगी हैं, तो लोगों में डर बैठ गया है। पर कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि शायद आरबीआई की इससे ही उम्मीदें हैं, और आरबीआई ही शायद इस पूरे मामले को सुधार सकता है। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज दिल्ली। ग्राहकों की परेशानी सिर्फ एक शहर तक ही नहीं है, यूपी के लखनऊ में भी ग्राहकों की मुसीबत देखने को मिली। आरबीआई के सख्त निर्देश के बाद इस समय यस बैंक के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लग गए हैं। हालांकि यस बैंक की तरफ से भी अब कस्टमर्स को सिर्फ 50,000 रुपए ही एक माह में निकालने के यहाँ पर सुविधा मिली हुई है, जिसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि बैंक के अंदर काफी ज्यादा हलचल जो है वो बढ़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, बाहर भी काफी सारे लोग खड़े हुए हैं, और जाहिर है कि जिस तरह से लगातार आरबीआई द्वारा कहा जा रहा था यस बैंकों की जो फंड है वो पूरा जमा नहीं कर पा रही है, पूरे फंड्स को इकट्ठा नहीं कर पा रही है, उसके बाद से ही हलचल काफी ज्यादा तेज हुई थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं कि किस तरह से देखते हैं कि इस तरह से जब किसी प्राइवेट बैंक में अचानक इस तरह के हालात होते हैं तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं आप भी सुबह से यहाँ खड़े हैं। अब क्या देखते हैं, हमारा 10 से 15 लाख रुपए अकाउंट में है, हमें भी सैलरी बांटना है, होली का टाइम है, आप देख ही रहे हैं, त्योहार का टाइम है, तो ये बुरी चीज तो लगती है। मेरा मेहनत का पैसा है, कब वो गवर्नमेंट को भी अश्योर करना चाहिए कि कब वो जो है हमारा पैसा कब वापस होगा, कब नहीं होगा। अभी यहाँ बात उन्होंने की, उन्होंने कहा आरबीआई ने जो है इसमें संज्ञान लिया है, तो अब वही है कि मगर ये सॉर्ट आउट कब होगा, कहने का मतलब ये हमारा पैसा हमें कब मिलेगा। 50,000 से तो काम चलना नहीं है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर आए हुए हैं, और जाहिर है कि ये चाहते हैं कि इनका पैसा जो है वो डेली निकल सके। हालांकि 50,000 तक की सीमा को तय किया गया है, लेकिन हालात ये हैं कि 50,000 से घर नहीं चलना है। जब से खबर ये बात सामने आई है तब से लोगों की भीड़ जो है वो यस बैंक के सामने लगनी शुरू हो चुकी है। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। भोपाल में भी ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यस बैंक के ज्यादातर एटीएम में पैसा नहीं। मार्च एंडिंग में यस बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है कि अब वो जो है प्रति महीना 50,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे। इस समय हमारे साथ यहाँ पे यस बैंक के ग्राहक मौजूद हैं। आज सुबह जब आपने ये खबर देखी कि आप प्रति महीना जो है 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप भी, आपकी एक फर्म है, बड़ी संस्था है, कितने का ट्रांजैक्शन आप जो है प्रति महीना करते हैं? प्रति माह ऐसा होता है कि ये एक बिजनेसमैन का होटल का अकाउंट है, जहाँ पर डेली का ही ट्रांजैक्शन 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख होता है। क्योंकि ये महीना एंडिंग है, मार्च क्लोजिंग है, तो इंसान फ्यूचर का अपना जो भी बनाता है इसी मार्च के अंदर बनाता है। आज उसने अपने सप्लायर्स को जो चेक जारी कर रखे हैं वो चेक सभी इन्होंने बताया, जब बैंक में हमने जानकारी ली तो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आपने जो भी चेक जारी कर रखे हैं वो भी सब डिसऑनर हो जाएंगे। अब आप बताइए, आरबीआई से पूछा जाए कि जब चेक डिसऑनर होता है तो एक बिजनेसमैन की रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? अब ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं,
बिजनेसमैन अपने हाथ पे हाथ धर के बैठेगा, रिक्वेस्ट करेगा सप्लायर से कि साहब आप वो चेक वापस दे दीजिए, तो उस समय भी गलत है। और अगर वो वापस ले भी ले तो वो उनको पेमेंट कैसे करेगा? बिल्कुल, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जो यस बैंक के ग्राहक है वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से यस बैंक नकदी के संकट से जूझ रहा है और यहाँ पे जो यस बैंक की कमेटी है उसको रिजर्व बैंक ने भंग कर दिया है। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी यस बैंक के ग्राहकों में अफरा तफरी देखने को मिली। गाजियाबाद के राजनगर इलाकों में लोग अपनी गाढ़ी कमाई को बैंक से निकालने के लिए परेशान दिखे। हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। मैं इस वक्त गाजियाबाद में राजनगर इलाके में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे ये यस बैंक है और यहां पर आप जो बैंक है उसके भीतर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखेंगे, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है कि 50,000 रुपए तक की कैपिंग कर दी गई है, लोग अपने अपने रुपए निकालने के लिए और उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। यस बैंक के कर्मचारी या आप देखेंगे वो बाहर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की जो अव्यवस्था है वो ना हो। और बाहर की तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो तमाम लोग हैं, जो जमावड़ा आपको दिख रहा है, इनमें ज्यादातर लोग यस बैंक में पहुंचे हैं। उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, उसके बारे में जानने के लिए पहुंचे और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको जानने के लिए पहुंचे। हमारे साथ एक युवक यहाँ पर मौजूद हैं जो पैसे निकालने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनु मित्तल है। क्या कितना पैसा है आपका और क्या आपको जानकारी मिली है? मेरा बैंक में तकरीबन 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जो कि मेरी सैलरीड अकाउंट का है और इस वक्त मेरे पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है। मैं पिछले 2 से 3 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ और अभी मेरे को जानकारी मिली है कि अभी बैंक में पैसा खत्म हो गया है। तो बैंक से जो भी लोग बाहर आ रहे हैं वो परेशान हालत में ही आ रहे हैं और जिससे भी बात करें वो यही कह रहा है कि अभी बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। जो अफरा तफरी जैसा माहौल है वो जरूर यस बैंक पर बना हुआ है। देखिए, ये राजनगर इलाका है, काफी ये व्यस्त इलाका रहता है और यहाँ पर जो तमाम लोग पहुँच रहे हैं वो अपनी मेहनत की कमाई के बारे में जानने के लिए पहुंच रहे हैं। कम से कम 50,000 ही उनके हाथ आ जाएं तो वो भी उनके हाथ फिलहाल नहीं आ पा रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली से सटे नोएडा में भी ग्राहक परेशान दिखे। यस बैंक के ग्राहक सुबह से ही बैंक में अपना पैसा निकालने पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। बैंक की तरफ से ग्राहकों को बताया गया कि बैंक में कैश नहीं है। नोएडा के सेक्टर 18 में यस बैंक की ब्रांच में ज्यादातर लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पटना में भी लोग अपने पैसे को निकालने के लिए परेशान दिखे। हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने लोगों से बातचीत की। एटीएम से विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। अब एक सैलरीड आदमी के लिए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वो अपना ऑफिस छोड़ करके और बैंक में आकर के लाइन में लगे? मान लीजिए कि अगर जैसा ये कह रहे हैं कि 50,000 की लिमिट है, अगर मान लीजिए कि ठीक है 50, किसी के घर में अगर शादी है 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद, वो कहाँ से पैसे अरेंज करेगा? अभी महीना स्टार्ट ही हुआ है, पैसा निकालना चालू होना ही था अभी, और तब से ये आ गया कि पूरा महीना ही मेरा ये चला जाएगा, तो फिर दिक्कत तो है। घर का खर्चा है, रेंट देना है, दुकान का रेंट देना है, सब चीज का रेंट देना है, सारे एफडी सभी ब्लॉक है। दुखी हैं यहाँ तक कि बैंक के लोग और जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ मतलब क्राउड बेस काफी कम है, तो देख रहे हैं कि पब्लिक काफी कम जमी हुई है, पर फिर भी जो लोग हैं उनका सर्विस अभी तरह से प्रॉपर्ली नहीं दिया गया है। काफी गंभीर मामला है और पर्व का त्योहार है, इसमें सब लोग को खर्च का समस्या आती है। मैं भी जो है इसके लिए परेशान हूं और निवेदन करूंगा कि शीघ्र ही इस पर समाधान किया जाए। यस बैंक संकट पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने पूछा है कि क्या बैंकों में हमारी सेविंग सुरक्षित है, क्योंकि पहले भी कई बैंक ऐसे ही संकट में आ चुके हैं। हमारे साथ लोकसभा सांसद ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, जिस तरह से यस बैंक के हालत हैं, आपने ट्वीट भी किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? यस बैंक तो खत्म ही हो गया ना, अभी कहाँ यस बैंक है, तो नो बैंक हो गया। अभी इस सरकार ने कोई सबक हासिल नहीं करती। वो IL&FS गया, दीवान गया और फिर आपका PMC हुआ, अब ये हो गया है। RBI का नॉमिनी उस पर बैठकर क्या कर रहा है, और इतने लोगों को जो उन्होंने बढ़ चढ़कर लोन दिया है वो सब कहाँ है? ब्रेक का जल्द वापस लौट।